اس لیے کہ وہاں پر ایک تلخی کا ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے کہ جو شاید بھاگم دوڑی میں ہی اب اس بجٹ کو پاس کر دیا جائے۔ پھر یہ سلسلہ یہاں پر نہیں رکا ہے، یہ اب بلوچستان تک گیا ہے۔ بلوچستان میں جس طریقے سے انہوں نے گزشتہ 3 سالوں میں اپوزیشن کے حقوق کو پامال کیا ہے، اپوزیشن اراکین کے حلقوں کو جس طرح محروم رکھا گیا ہے، یہی بجٹ کا ہی تو موقع ہوتا ہے کہ عوام کے نمائندے عوام کی آواز بن کر عوام کی طرف سے احتجاج نوٹ کراتے ہیں۔ لیکن جس طرح کے بختر بند گاڑیوں کے ذریعے سے دروازے توڑے گئے، جنگلہ توڑا گیا، معزز ممبران اسمبلی کی ہڈیاں توڑی گئیں، مولانا عبدالواحد صدیقی کا ہاتھ ٹوٹا، دوسرے معزز اراکین، بزرگ اراکین، ان کی توہین کی گئی، اور اس طریقے سے بختر بند گاڑیوں کو اپنے ملک کے وی آئی پیز کے خلاف استعمال کیا گیا۔ شرم کی بات ہے، دھاندلی کی پیداوار کی حکومت اور اسمبلیاں یہی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ پورے ملک میں ہر حلقے میں لچے لفنگوں کو دھاندلی کے ذریعے اٹھا کر پارلیمنٹ میں بٹھا دیا گیا، اور آج ان کا یہ کردار سامنے آ رہا ہے۔ نہ کوئی وقار ہے، نہ کوئی احترام ہے، نہ کوئی کسی کی عزت و آبرو ہے، اور اس طریقے سے نااہل لوگوں کو جن کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہے اور محلے کے اوباش لوگوں کی طرح اٹھا کر پارلیمنٹ میں بٹھا کر پارلیمنٹ کی بے توقیری کی گئی ہے۔ اس صورتحال میں پی ڈی ایم اپنے موقف پہ قائم ہے اور حکومت کے خلاف عوامی قوت کے ساتھ تحریک کا عمل جاری ہے۔ انشاءاللہ العزیز 4 جولائی کو سوات میں تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور عوام کی شرکت یہ بتائے گی کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام نے کس طرح اس حکومت کو مسترد کیا ہے۔ پشتون قوم تو بڑی عزت دار اور باوقار قوم ہے، لیکن ان کے کردار کی وجہ سے پشتونوں کا عزت و وقار اور ان کا باہمی احترام کی جو روایات ہیں وہ پامال ہو گئی ہیں۔ ایسے لوگ کم از کم پشتون قوم کے نمائندے نہیں ہو سکتے۔ مجھے 2013 میں بتایا گیا، 2013 میں مجھے بتایا گیا کہ چونکہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں اور مذہب کی ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس عمران خان سے بہتر چوائس اور نہیں تھا۔ جس منصوبے کے تحت یہاں پر نئی نسل کو گمراہ کیا گیا، جس طریقے سے یہاں کی باوقار اور اعلیٰ روایات کے حامل تہذیب و تمدن کو پامال کیا گیا اور ایک مادر پدر آزاد معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کی گئی، اس کے لیے یہی پارٹی اور اسی پارٹی کی قیادت کو چنا گیا ہے، اور یہ خالصتاً مغربی اور یہودی ایجنڈے کی بنیاد پر کیا گیا، اور ہم اپنے اس دعوے پہ قائم ہیں۔ ایک بڑی جنگ ہے اور انشاءاللہ یہ ہم نے جیت لی ہے۔ 29 جولائی کو کراچی میں
PDM का बहुत बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह। और इस तरीके से एक बार फिर अवामी सफ़ों को मुनज़्ज़म किया जाएगा और अवामी क़ुव्वत ही हमारे नज़दीक हमारा हथियार है। जमहूरी हथियार को इस्तेमाल करेंगे, भरपूर तौर पर इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और मुल्क को आइन की पटरी पर वापस लाने के लिए हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम एक बार फिर मुतनब्बिह कर देना चाहते हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान के उन इदारों को जो आज इस किस्म की हुकूमत की पुष्टपनाही कर रहे हैं और उनकी पुष्टपनाही को अपना आइनी फरीज़ा समझते हैं कि वो गैर जानिबदार हो जाए। हम उनकी कदर करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, लेकिन सियासत में उनकी इस तरह की मुदाखलत को न कबूल किया है और न ही कबूल करेंगे। कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़ दी है। हम उसकी तायीद करते हैं, इस पर काम होना चाहिए और बुनियादी नुक्ता यही हो कि इंतखाबी मराहिल के अंदर किसी मरहले पर भी जासूसी इदारों की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। फौज को इलेक्शन से दूर रखा जाए। अगर कहीं पर अमन अमान की सूरत हाल है तो उसके लिए पुलिस काफ़ी है। आम निहत्ते लोग उनके मुकाबले में फ़ौज को भेजना, ये तो फ़ौज के इदारे की भी तौहीन है। तो इस लिहाज से कुछ तजावीज़ हमें मुरतब करनी होंगी, ऐसी तजावीज़ जो मुनसिफाना इंतखाबात की ज़मानत दें और कौम के लिए इंतखाबी नताइज काबिल कबूल। फाटा की सूरत हाल, इस वक्त हमारा फाटा और फाटा के अवाम मजलूमियत और कसमपुरसी के दौर से गुजर रहे हैं। पुराना निज़ाम भी ख़त्म कर दिया गया और नए निज़ाम का तजर्बा भी नाकाम नज़र आ रहा है। दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही, लेकिन क्यों सर उठा रहे? हमें शुबा है कि इस किस्म के हालात रियासत और रियासती इदारों के नाक के नीचे पैदा होते हैं। उनकी आंखों के सामने ये हालात रूनुमा होते हैं। बल्कि अगर मैं ये गुस्ताखी भी कर लूं कि उसमें उनकी कुछ आशीर्वाद भी हासिल होती है ताकि फौज को फाटा में रखने के लिए जवाज मौजूद रहे। चुनांचे दोबारा वहां पर नई नई तंजीमें उठ रही हैं जो टारगेट किलिंग करती हैं, हत्ता के उलमा को कत्ल करती हैं, उनको शहीद करती हैं और इस तरह अवाम में एक इस्तिराब और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक एहसास दोबारा पाया जा रहा है। क्यों कौम से कहा गया कि दहशतगर्दी ख़त्म कर दी गई? क्यों कौम से कहा गया कि वहाँ पर अमन हालात हैं और वहाँ पर इंज़िमाम होना चाहिए? तो ये सारी सूरत हाल हम समझते हैं कि मुख्तलिफ इदारे कुछ अपने मफादात और अपना हाथ ऊपर रखने के लिए कर रहे हैं ताकि उसके लिए जवाज़ मौजूद रहे। सरताज अजीज रिपोर्ट में कहा गया था कि 10 साल तक 1000 अरब रुपया फाटा को दिया जाएगा, हर साल 100 अरब रुपया।
ताकि वहाँ पर तरक्याती काम, सड़कें बने, स्कूल कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटी बने, हॉस्पिटल्स बने और लोगों के मेयार ज़िंदगी को बुलंद किया जाए ताकि बंदोबस्ती इलाक़ों के लोगों के साथ उनकी जो ज़िंदगी का मेयार है वो उसके बराबर आ जाए। आज तक उन्हें एक पैसा नहीं मिला और इस साल जो बजट में पैसा रखा गया है जो नुमाइशी है वो भी कोई 54 अरब का है, 100 अरब का तो से भी आधा हो गया। पैसा कहाँ चला गया? पैसा क्यों नहीं है पाकिस्तान में? हमारा बजट जीरो से नीचे क्यों चला गया है? मैं वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि झूठ बोलकर जितने भी बड़े बड़े दावे किए जाएं, महंगाई का पहाड़, एक और पहाड़, जिस तरह कोरोना का कहते हैं ना नई लहर आ रही है, तो कोरोना का महंगाई का भी एक नया पहाड़ अब गिरने वाला है। आवाम की हालत और बुरी हो जाएगी और ये दावे करते फिरेंगे अपने बड़े बड़े महल्लात में बैठकर अय्याशियाँ करते हुए, वो समझेंगे कि सब हमारी तरह खुश हैं। किसी लिहाज से भी इस हुकूमत को बरकरार रहने का कोई जवाब हासिल नहीं है। हम अफगानिस्तान में वहाँ का पुरअमन हल चाहते हैं। एक पुरअमन अफगानिस्तान, एक मुस्तहकम अफगानिस्तान, एक इस्लामी अफगानिस्तान, और उस हवाले से जो पेशरफ्त हुई है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। ये हीले बहाने के मुआहदे पर अमल दरामद को मौखर किया जाए, इसकी वजूहात वाज़ेह की जाएँ, माकूल वजूहात, ताकि उस पर गौर भी किया जा सके और तालिबान को भी मशवरा दिया जा सके। लेकिन दुनिया में जब मुआहदे होते हैं तो वो अमल दरामद के लिए होते हैं, वो सिर्फ मामले को झटका देने के लिए नहीं हुआ करते। ये डंग टपाव सियासत होती है कि दफुल वक्ती करो और कौम को उसी हालत में रहने दो। सन 1979 से लेकर आज तक अफगानिस्तान जंग की आग में जल रहा है और हमारे पड़ोस में है। मैंने पहले भी एक ज़माने में कहा था कि पाकिस्तान अपनी अफगानिस्तान के हवाले से अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करे, उसमें संजीदगी पैदा करे, वरना एक वक्त आएगा जब अफगानिस्तान में सब होंगे और पाकिस्तान नहीं होगा। आज का ये पूरा माजी का आशरा वो ऐसी ही सूरत हाल में गुजरा है कि हमारे दुश्मन तो अफगानिस्तान में मौजूद हैं और उनका किरदार मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान का कोई मुअस्सर किरदार नज़र नहीं आ रहा। हम पाकिस्तान का किरदार चाहते हैं, पाकिस्तान का एक मुअस्सर किरदार चाहते हैं, लेकिन इस तरह की हुकूमतें, कमज़ोर हुकूमतें, नाजायज़ हुकूमतें, धांधली के नतीजे में मुसल्लत की गई हुकूमतें इतने बड़े चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकती। कश्मीर हमारे हाथों से निकल चुका है इसी वजह से कि क़यादत कमज़ोर है। अब वो कश्मीर की नुमाइंदगी नहीं कर सकी, वो कश्मीर की तर्जुमानी नहीं कर सकी है, उनकी नीयतें भी ख़राब हैं, उनकी सलाहियतें भी कमज़ोर हैं। तो इस सूरत हाल में हम कौम को, कश्मीरियों को, अफ़गानों को, फ़लस्तीनियों को तन्हा नहीं छोड़ सकेंगे और उम्मत मुस्लिमा इंशाअल्लाह एक सफ़ बनकर अपने चैलेंजेस का मुकाबला करेगी। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर। मुनासिब भी बताएं कि शेख रशीद साहब का बयान आया कि तलखी की सियासत काफ़ी हो चुकी है, अब हमें बैठकर बात करनी चाहिए। बैठकर बात किससे की जाए? कोई बासलाहियत लोग हों, इस काबिल लोग तो हों कि उनके साथ बैठकर आदमी बात करे। जिस तरह का उन्होंने ज़बानें इस्तेमाल की हैं, जिस तरह उनका रवैया है, ये लोग किसी बावकार मजलिस में उनके साथ बैठने के काबिल हैं? किसके साथ बात की जाए? मौलाना साहब ये बताएं कि जब आपसे बैठते तो आप कहते कि पीटीआई हुकूमत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन जब उनके साथ बैठते तो वो कहते कि मौलाना साहब और पीटीएम को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। तो
تو یہ حقیقت میں کس کو عوام میں مسترد کرتے ہیں؟ اس کی سمجھ پر نہیں آ رہی.